Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's jump straight to our today's topic, devices of parliamentary proceedings. So in the previous classes, I have told you about the session of the parliament. So what I have told you, if I briefly revise it, in a session, each and every day, parliament will sit and carry out its daily business. What is its daily business? That is passing of bills, making laws, legislations, debating on the certain important issues, है ना. तो ये सब उसकी प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड होता है. ठीक है. सो वी हैव borrowed this particular legislation, whole legislative system from the Britain, and we know in Britain and also in India we have rule of law. Only the rules which are made by the parliament or the competent legislative houses, they have to be followed in each and every part of our country. ठीक है. As this parliament is also an invention of the Britishers, so इसमें भी वो हर जगह रूल फॉलो करते हैं. A particular law will be followed in the parliamentary proceedings also. Understood? हमने पूरा का पूरा बोरो कर लिया? नहीं. Only the important aspects of the parliamentary system or the devices of parliamentary proceedings have been borrowed from the Britain. ठीक है इतना. Now in this particular session, when the session of the parliament is going on, so every day there will be sitting and the speaker of the house will be conducting debates. तो उसके प्रोसीजर क्या होता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. सुबह 10 या 9 बजे जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग बुलाई जाएगी तो सबसे पहले होता है द फर्स्ट आवर इज द क्वेश्चन आवर. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन आवर हैज बीन मेंशन्ड इन द rules of procedure of the houses. This is a particular law book on which the houses of the parliament are going to be conducted upon. ठीक है. और ये कौन इंश्योर करता है कि these particular laws will be followed on the premises of the parliament? Of course, speaker. ठीक है. So this is the first hour of the proceedings. ठीक है. जैसे ही 9 या 10 बजे पार्लियामेंट बैठती है, so the first hour is the question hour. Now what happens in this question hour? Firstly, I have told you this have been mentioned in the rules of proceedings, जो भी लोकसभा या राज्यसभा की है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इट इज अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नाउ देर आर 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस that can be asked by the कौन करेगा क्वेश्चन? COM करेगा. द पार्टी who is ruling, who is forming the ruling government, he has the prerogative to ask the question, or the opposition party. By if I have the authority to rule the India, so the opposition party has the prerogative to ask various questions from the ruling party. ठीक है. So the opposition party can ask 3 types of questions in this particular questionnaire. The first is starred question, and a star mark will be put across these questions. ठीक है. These questions have to be answered orally. ठीक है. If these particular starred questions have been answered orally, it means opposition party can put forward supplementary questions. ठीक है. If another question has been raised by the answer of this particular starred question, then supplementary questions can be followed by the opposition. Unstarred question, no star mark you can see in front of these questions, and these are of written answers only. It means opposition party has demanded that these particular set of questions we want a written answer to these. ठीक है. As these questions, as this answer are written in nature, so no supplementary questions can be asked in the second set of questions, that is unstarred questions. The third is short notice question. So in this particular, normally less than 10 days notice is given to the government. It means
the opposition party will intimate the ruling government that this particular question we will be asking in the floor of the parliament and you have to answer it. ठीक है, बट दिस पर्टिकुलर इंटीमेशन टू द COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ही शॉर्ट नोटिस में दिया जाएगा विच इज जनरली लेस देन 10 days. ठीक है, तो इस 10 दिनों के अंदर आपको अपना वो आंसर फॉर्म करना है टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ अपोजिशन. ठीक है, और ये कैसे आंसर दिया जाएगा, ऑल्सो ओरली. सो दीज आर द different kinds of question that is asked in the question hour, and it is the first hour of the whole parliamentary proceedings. इतना समझ आ गया आपको. Now jumping to the second one, that is 0 hour. The speciality of this 0 hour, first is it is Indian innovation. Okay, मैंने आपको बताया था we haven't borrowed all the devices of the parliamentary proceedings from the Britain. ठीक है, only selected we have ransacked. 0 hour is an Indian innovation. ठीक है, the moment question hour finishes automatically 0 hour starts. ठीक है, and in this particular 0 hour various questions can be asked on the various topics by the opposition party to the रूलिंग पार्टी. ठीक है, and the speciality of 0 hour is it is not mentioned anywhere. Anywhere means not in the constitution, not in the rules of procedure books, in any book of the parliamentary procedures or in the constitution you will not find mention of this 0 hour. So it is purely a parliamentary convention. ठीक है, एंड वेरियस टॉपिक्स मिसलेनियस टॉपिक्स कैन बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर 0 hour. ठीक है, सो इट मीन 0 hour इज द आवर बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द मेन एजेंडा ऑफ द डे. अगर हमने कोई बिल पास करना है दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ द डे, बट इन बिटवीन मान लीजिए क्वेश्चन आवर्स में तो ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके हमने पूछ लिए. ठीक है, अब मान लीजिए टुडे द प्रेसिडेंट हैज कॉल्ड द सेशन, है ना, और इससे एक दिन पहले ही ऑन द प्रीवियस डे देर इज सम दंगे गोइंग ऑन इन द कंट्री. ठीक है, देर इज सम हड़ताल गोइंग ऑन इन द कंट्री. ठीक है, देर इज सम सिवियर रेप एक्यूजेशंस गोइंग ऑन इन द कंट्री. जैसे मी टू मूवमेंट था, बॉलीवुड सेलेब्स पे इतने बड़े बड़े हमने केसेस देखे थे, है ना. दे आर नॉट केसेस, क्या थे वो, बस पॉइंट आउट किया था कि इसने ये किया उसने किया. ठीक है, पूरे जुडिशरी में केसेस तो गए नहीं थे बट सब पॉइंट आउट कर रहे थे. सो इतने बड़े बड़े जो चीज़ें आ जाती है दिस मिसलेनियस टॉपिक्स कैन बी डिस्कस्ड इन द 0 hour. अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ 0 hour. नाउ द मोशंस. सो देर आर सम काइंड ऑफ मोशंस गिवन इन अवर NCERT बट सम ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट with respect to our exam point of view. First is closure motion. So this particular closure motion ये कहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है, जब भी हम बड़े बड़े बिल्स पास कर रहे होते हैं. ठीक है, एक अगर बिल मैं आपको बताऊँ एनुअल फिस्कल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज इज कॉल्ड बजट ऑफ आवर कंट्री. सो बजट में क्या होता है, इट इज़ अ बैग ऑफ बिल्स डेट हैज़ टू बी पास्ड, है ना. किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसको हमको डिमांड ऑफ ग्रांट्स देना है, इतनी सारी मिनिस्ट्री है उन सबको देना है, ग्रांट्स एंड एड देना है स्टेट्स को. सो दीज ऑल काइंड ऑफ बिल्स हैव टू बी पास्ड सेपरेटली, बट पार्लियामेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम गिवन टू इट्स प्रोसीडिंग और सिटिंग इट इज़ नॉट एबल टू पास और डिस्कस एवरी एंड ईच पॉइंट ऑफ द बिल्स. ठीक है, सो दिस क्लोजर मोशन में एक पर्टिकुलर मोशन है जिलेटिन या गिलोटाइन. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन और जिलेटिन, कुछ भी बोल सकते हैं आप. गिलेटिन आपको पता होता होगा. सो दिस काइंड ऑफ मशीनरी इज यूज्ड इन द एंशिएंट यूरोप. ठीक है, टू पनिश द कल्प्रिट्स. क्या करते हैं इन द पनिशमेंट, दे बिहेड द कल्प्रिट. पता है ना आपको, यहाँ बैठते नीचे एंड दिस पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रोसीजर विल कट डाउन हिज हेड. So in this is
कॉल्ड द मशीन ऑफ गिलेटिन, है ना। सो इंटरव्यू में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन विद रिस्पेक्ट टू द बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, मैंने अभी आपको बताया देयर आर बंडल ऑफ बिल्स, so parliament doesn't have time to discuss or ponder upon every and each provision of all the bills. So क्या करेगी parliament? 1 or 3, these are the most important topics and these bills contain most important provisions. So क्या करेगी? Parliament will ponder and discuss thoroughly upon 1 and 3, and this 2 and others will be clubbed together. So this whole bundle is clubbed together. Remind you, 1 and 3 are only being discussed in the floor of the parliament, but this whole bundle will club together and put to vote. ठीक है, अभी अपोजिशन को भी पता होता है, रूलिंग पार्टी को भी पता होता है, फॉरेन जितनी भी कंट्रीज है उनको भी पता है, सिटीजन्स है उनको भी पता है, बट ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम it is not practical to discuss each and every provision of these bills. So that is why this particular application of guillotine is taken place. ये पास्ट में भी था, अभी भी है, और कोई से ऑब्जेक्ट भी नहीं करता, ठीक है। सो दिस होल बंडल विल पुट थ्रू वोट, और अगर ये पास हो जाता है, सो इट इज कंसिडर्ड दैट ईच एंड एवरी बिल इन दिस बंडल हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। सो ये था एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन। एक और क्लोजर मोशन है, कंगारू क्लोजर है, ये भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। इसमें आपको ये याद रखना है, ओनली द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द this particular bundle will be discussed upon and rest are skipped, ठीक है। प्रिविलेज मोशन, सो वी नो द मिनिस्टर्स, एमपी के पास भी प्रिविलेज है, बट जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक है, इफ द पर्टिकुलर एमपी इज विदहोल्डिंग फैक्ट्स और ही इज गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस, so it will amount to the breach of privilege motion. Sorry, it will amount to the breach of privilege, and then only an opposition leader will introduce a privilege motion against the particular minister. अगर ये पास हो जाती है तो दिक्कत हो जाएगी, अंडरस्टूड। कॉलिंग अटेंशन मोशन, देखिए कितनी मिसलेनियस चीज़ें हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्वेश्चन आर, जीरो आर, इट मीन्स हमने इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपोजिशन को इन अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि अगर अपोजिशन चाहे सो इट कैन बेसिकली कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। हमने इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। सो कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या है, फिर से अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे COM की हमें नज़रें डालनी है, वी हैव टू पुट लाइट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक जिसको COM बार बार इग्नोर कर रहा है। सो दिस पर्टिकुलर कॉलिंग अटेंशन मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। मैंने आपको बताया एवरीथिंग विल बी इन ट्यून ऑफ लॉज और रूल्स। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम क्लास में बैठे हैं एंड अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, इन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स माइंड अ आइडिया विल पॉप अप, लेट्स चेंज आवर गेम्स पीरियड, या लेट्स कॉल मैथ्स टीचर फॉर द एक्स्ट्रा क्लासेस। सो क्लास में तो हम बाय रेजिंग आवर हैंड्स वी कैन गिव अवर फीडबैक और गिव अवर आइडियाज, बट पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। अ पर्टिकुलर मोशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस कॉल्ड कॉलिंग अटेंशन मोशन, एंड देन ओनली यू कैन स्पीक इन द हाउस अबाउट दैट पर्टिकुलर मैटर। नहीं तो जो एजेंडा ऑफ द डे पहले से डिसाइडेड है उसी पे आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड यू कैन नॉट टच द पेरिफेरी टॉपिक्स, अंडरस्टूड। NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या, वो तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। पहले मोशन ऑफ थैंक्स देख लेते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दिस। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? इन जनरल, इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दिस, द प्रेजिडेंट हैज अ प्रेरोगेटिव टू एड्रेस द हाउस ड्यूरिंग 2 times. फर्स्ट इज द फर्स्ट सेशन आफ्टर द calendar new year, it means budget session, and second is the first day of the sitting of the newly constituted Lok Sabha after the general elections. So at this particular specific times the president can address the houses,
And in these particular address of the president, इनमें क्या होता है, the president has given a particular list of subjects, वो उसको पूरी बतानी होती है टू द एंटायर हाउस, और एंटायर हाउस के माध्यम से पूरे इंडिया को, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर बुक है, दिस बुक हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट इज स्पीकिंग आउट द डिटेल्स, प्लान्स, प्रायोरिटीज of the ruling government in the upcoming 5 years. The plans and the priorities given by the COM, Council of Ministers, in the next 5 years, they have to implement it. So that particular roadmap will be included in this booklet, and this booklet will be given to the president, and in his address, president will call out or dictate this particular whole book, ठीक है। This particular book is nothing but a particular bill, and this bill after the address of the president has to be passed in the houses, ठीक है। अगर ये हाउसेज में पास हो जाता है, सो हम एक तरह से थैंक्स बोल रहे हैं प्रेसिडेंट साहब को, डेट यू हैव taken out a precious time to address both the houses of the parliament. So in regard to your address, we are passing or thanking you by passing a bill, and if this bill is passed, so it means the ruling government is having the confidence of the houses, है ना। So this is nothing but motion of thanks. पहले मिटा देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, किस में कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? अपोजिशन में नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है रूलिंग गवर्नमेंट में, द गवर्नमेंट विच यू हैव चूजन इन द प्रीवियस इलेक्शंस, इट इज नॉट एंजॉइंग मेजॉरिटी इन लोकसभा, तो डेट्स वाई no confidence motion can be introduced in the Lok Sabha or the lower house only. Once a no confidence motion will be passed in the Lok Sabha, it means the ruling government is not enjoying the confidence or the majority in the lower house, and the whole council of ministers resign if this particular motion have been passed in the Lok Sabha. Understood? So these are all kinds of motion that can be included. अब देखिए इकोनॉमी में भी, और इसमें भी हम पढ़ लेंगे, बजट में पढ़ेंगे, वेन एवर बजट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, इन द लोकसभा, सो आफ्टर द जनरल डिस्कशन, फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कशन, वेरियस मोशंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू, किसके लिए वो मोशन इंट्रोड्यूस होंगी? टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो भी कुछ होती है, कट मोशन होती है एक, और भी इकोनॉमिक कट मोशन होती है, ऐसा 2-3 मोशंस होती हैं, ठीक है। टोकन कट होती है एक। सो दीज मोशंस आर इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल्सो नोन एज बजट, ठीक है। लास्ट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड व्हेन द नॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज वायलेटेड। कौन वॉयलेट करेगा? कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर वॉयलेट कर सकता है, पर अगर मिनिस्टर करता है उसके लिए तो स्पीकर बैठे हैं, बिकॉज स्पीकर इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी इन द प्रीमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सो अगर मान लीजिए स्पीकर जो रूल्स, जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स है विच हैव बीन रिटन एंड कोडेड आउट इन द रूल बुक्स ऑफ द ईदर ऑफ द हाउसेज, अगर उस हिसाब से स्पीकर नहीं चल रहा, देन एनीवन कैन रेज दिस पर्टिकुलर, आप मोशन ही बोल लीजिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दैट प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस आर नॉट इन ट्यून और अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। सो उसी को बोला गया है पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना, ठीक है। इसके बाद आज ऑर्डिनरी बिल्स और थोड़ा सा मनी बिल देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस बजट। ऑब्जर्व दिस। So next topic is ordinary bill. I have told you various bills can be introduced in either of the houses of the parliament.
सम आर ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। अगला क्या है, मनी बिल अंडर आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक चीज़ होती है, एक टर्म है, लेट द लॉबी बी क्लियर्ड, ठीक है। ये स्पीकर बोलते हैं, ये मेरे को प्रीवियस क्लास में बताना था पर समहाउ आई मिस्ड इट। सो लेट द लॉबी बी क्लियर्ड, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यूपीएससी से कुछ भी पूछ सकता है। ये एक टर्म दे दी जाएगी और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो लॉबी बी क्लियर्ड का मतलब ये होता है, वेन एवर देर इज पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस्ड, लाइक ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द बिल इज पुट टू वोट। सो व्हेन दिस पर्टिकुलर बिल इज पुट टू वोट, तो अलग अलग वोटिंग के साधन होते हैं। देयर आर वेरियस डिवाइसेज ऑफ वोटिंग। बैलेट पेपर में दिया जा सकता है, ठीक है। बैलेट पेपर हुए, सबको बांट दिए, सब अपना यस या नो लिख के भेज देंगे। सेकंड इज वॉइस वोट। वॉइस वोट में जो स्पीकर होता है वो बोलेंगे दोज हु आर इन फेवर ऑफ द बिल से आई, AYE, आई, यस मतलब। सो ऑलवेज द मेंबर्स, basically the COM, whole COM will say aye, and COM is enjoying the majority of the लोक हाउस। इट मीन्स ये बिल तो पर्टिकुलर लोक हाउस में पास होना ही होना है। फिर स्पीकर बोलेंगे दोज हु आर अगेंस्ट द बिल से नो। सो सब जो भी अपोजिशन पार्टी है वो नो बोल देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें स्पीकर ने बस आय और नो सुन के ही अपना डिसीजन दे दिया, आई थिंक आई आर इन मेजोरिटी सो दिस पर्टिकुलर बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड, स्पीकर ऐसा डिसीजन दे देंगे। बट कोई अपोजिशन का जो मेंबर है हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर वॉइस वोट एंड ही कंसिडर्स दैट नो आर ग्रेटर इन नंबर देन आइज, तो क्या होगा, तब स्पीकर बोलेंगे प्लीज लेट द लॉबी बी क्लियर्ड एंड नाउ वी विल टेक अ वोट बाय अनदर मेथड। कोई भी हो सकता है, बैलेट पेपर और ये कुछ भी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लेट द लॉबी बी क्लियर्ड। मतलब सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, जो आइल है, जो लॉबीज हैं उसको क्लियर करो, सब अपनी जगह बैठ जाओ। नाउ अनदर वोटिंग इज विल बी टुक प्लेस, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसको पास करने के लिए कौन सी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आपको पता है मोर देन 51% प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। वेन एवर देर इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बिल, पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बिल इन द हाउस, सो देर इज फर्स्ट रीडिंग। The parliamentary members don't know the provisions of the bills until and unless the COM will speak out the provisions of the bill. So first reading में सब अपने अपने नोट्स बना लेते हैं। अच्छा, इस पे हमको चेयर तोड़नी है, इस पे हमको लाठी उठा के सर फोड़ना है, तो ये सब बना लेते हैं। इन द सेकेंड रीडिंग डिस्कशन एंड सरफोड़ी टेक प्लेस। सो दिस इज द डिस्कशन स्टेज, ठीक है। देर आर सम मेंबर्स हु आर इंटेलेक्चुअल इन नेचर, सो दे डिमांड टू सेंड दिस बिल टू द सेलेक्ट और ज्वाइंट कमिटी। व्हाट इज सेलेक्ट कमिटी? सेलेक्ट कमिटी मीन्स द कमिटी ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस। इट मीन्स अ कमिटी ऑफ लोकसभा और अ कमिटी ऑफ राज्यसभा। That is called select committee. If a particular committee includes both the members of the houses, जिसमें लोकसभा के भी मेंबर है, राज्यसभा के भी मेंबर है, that is nothing called but joint committee, ठीक है। सो ये डिस्कशन हो गया। नाउ अब क्या होगा, इट विल पुट टू वोट, दैट पर्टिकुलर बिल विल बी पुट टू वोट। इसमें हमको मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें मेजोरिटी मिल गई तब तो बहुत ही बढ़िया है। देन द बिल गोज टू द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ सेकेंड हाउस और फर्स्ट हाउस में दिक्कत हो सकती है। ये क्या दिक्कत हो सकती है? पहली परेशानी हो सकती है 6 मंथ्स तक द राज्यसभा, कंसिडर इट हैज बीन पास्ड इन द लोकसभा, सो द राज्यसभा इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है। और कितना टाइम निकल गया? 6 मंथ्स निकल गए, तो ये दिक्कत हो गई पहली। तो सेकेंड, द राज्यसभा इज कंसिडरिंग दिस बिल एंड डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग ऑन दिस बिल एंड द राज्यसभा इज फाइंडिंग इट ब्यूटीफुल, दिस बिल वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर बिल है ये, एंड इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, बट देयर आर सम 2-3 प्रोविजंस विच हैव टू बी अल्टर्ड। वो एक तरह से धब्बा है इस बिल पे, अगर वो निकल जाए, सो दिस इज वेरी गॉर्जियस बिल, ठीक है। सो
some consideration or recommendation is sent to the Lok Sabha regarding this bill. ठीक है, कुछ हमने रिकमेंडेशन लोकसभा को भेजी कि भैया योर बिल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जिसने भी ये बिल बनाया उसको रसगुल्ले खिलाओ जाके, बट ये दो चीज़ें निकाल दो इसमें से, या इनको अमेंड कर दो जो हम बता रहे हैं, और ये रही हमारी रिकमेंडेशन। ठीक है, बट लोकसभा ने क्या किया, उसे रिजेक्टेड दोज रिकमेंडेशन, यहाँ दिक्कत आ गई। और थर्ड है पास ही नहीं होने दिया, इट मीन्स नोज आर ग्रेटर देन आईज। ठीक है, so in case of ordinary bill, I am talking about ordinary bill, and these three conditions और है इनके बीच में कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, so the president has the prerogative to call a joint sitting of the house। कौन बैठता है joint sitting में, मैंने सब आपको बता रखा है। ये स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर द joint sitting। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन कभी प्रिसाइड नहीं करेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर जॉइंट सिटिंग, मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर्स एक ही रूम में बैठे हुए हैं, और अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, सो इट इज डीम्ड टू बी पास्ड। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनरी बिल। ऑब्जर्व दिस। अच्छा, जब दोनों हाउसेस से पास हो गया तब कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो क्या होगा, ही हैज थ्री ऑप्शंस, एक तो टू गिव हिज असेंट टू द बिल, सेकंड इज टू रिजेक्ट द बिल, और थर्ड इज मतलब एब्सोल्यूट वीटो, और थर्ड क्या है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो वापस, है ना। और अगर इफ बोथ द हाउसेस पास दिस पर्टिकुलर बिल, द सेम प्रोविजंस हैव बीन पास्ड ट्वाइस, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट टू दिस बिल। ठीक है, 42nd या कौन सा 44th अमेंडमेंट था ना, देख लेना एक बार। नाउ मनी बिल। सो मनी बिल्स आर गिवन, और इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस दी हुई हैं अंडर आर्टिकल 110। ठीक है, अब यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, छोटी क्लास से रखेंगे। सो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। मनी बिल्स रिक्वायर प्रायर असेंट किसका, गवर्नर का, प्रेसिडेंट का। ठीक है, कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोअर हाउस में, लोकसभा में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी। प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगा सकता। ठीक है, सॉरी एब्सोल्यूट वीटो नहीं, इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। मनी बिल्स को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, एंड दिस सेम पर्टिकुलर प्रोविजन विल अप्लाई टू गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में हम फिर से वी विल रीड दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट गवर्नर कांट सेंड बैक दिस पर्टिकुलर मनी बिल्स फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, सो इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, बट बाय पार्लियामेंट्री कन्वेंशन प्रेसिडेंट ऑलवेज गिव्स असेंट टू अ पास्ड मनी बिल। क्यों, बिकॉज प्रायर असेंट से ही प्रेसिडेंट के डेट बिल दिस पर्टिकुलर मनी बिल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। तो क्यों रिजेक्ट करेगा, पहले ही आपने असेंट दे रखी कि हाँ भाई बहुत अच्छा बिल है, जाओ इसको पास करा के लाओ, और फिर आए तो बोलता है नहीं नहीं अब तो बेकार लग रहा है, तुम्हारा हाथ लग गया, ऐसा तो होगा नहीं। सो प्रेसिडेंट वाया पार्लियामेंट्री कन्वेंशन विल ऑटोमेटिकली गिव असेंट to this particular money bill once it has been passed by both the houses of the parliament. So in the next class we will be studying the whole budget. ठीक है, वो एक ही क्लास में निपटा देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है फॉर अपकमिंग 3 months there is shortage of videos, so sorry for that. So if you are understanding each concept of this Lakshmikant book, so please like this video, share it with your friends and subscribe to this YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।